محدود وسائل میں رہتے ہوئے آگے بڑھنا ایک بہت مشکل کام تھا۔ نیازی ایکسپریس اور نیازی اڈے کی بنیاد رکھی۔ جب میں ٹرانسپورٹ کمپنی بنانے لگا تو مجھے یاد آیا کہ یار یہ میں اتنا چھوٹا تھا تب بھی یہ کھیلتا تھا، آج بھی میرا کھیل نہیں بدلا، آج بھی میں وہی کھیل رہا ہوں۔ ڈیلی سوشل پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں عمران علی خان۔ اعظم خان نیازی صاحب موجود ہیں جنہوں نے نیازی ایکسپریس اور نیازی اڈے کی بنیاد رکھی۔ کاروباری شخصیت بھی ہیں، سیاسی شخصیت بھی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے ملنے کے لیے لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے۔ یہ پنچایت کے کچھ فیصلے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کون لوگ ہیں جو ان کو ملنے کے لیے آتے ہیں؟ کاروبار سٹارٹ کب کیا؟ اور اگر یہ ٹرانسپورٹر نہ ہوتے تو کون سا بزنس کر رہے ہوتے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ نیازی ایکسپریس پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے، ایک جال بن چکا ہے۔ جس دن بنیاد رکھی تھی سوچا تھا کہ اتنا بڑا نیٹ ورک کھڑا کر لیں گے؟ یار دیکھو، سوچا یہ تھا کہ لوگوں کو سروسز دینی ہے، خدمات دینی ہے، اچھی سروس دینی ہے۔ ہمارا ڈائیوو کے علاوہ یہاں پہ کوئی معیاری کاروبار نہیں تھا ٹرانسپورٹ کے متعلق، تو ہمیں اس پر ورک کرنا تھا کہ اس سے بہتر کیسے جایا جا سکتا ہے، اور پھر محدود وسائل میں رہتے ہوئے آگے بڑھنا ایک بہت مشکل کام تھا۔ لیکن کبھی ٹھوکریں لگیں، کبھی گرے، کبھی اٹھے، کبھی سنبھلے، پھر لیکن ایک دن کامیابی آئی اور ہم نے ٹرانسپورٹ کمپنی بھی بنا لی، اور پھر کئی شہروں میں ٹرمینل بنائے، اور آج الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ساری کمپنیوں سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں۔ اس سروس کا آغاز کب اور کس کے کہنے پر کیا؟ یہ میرا ایک بات ہے بچپن کی۔ جب میں دوسری تیسری کلاس میں پڑھتا تھا تو میرے پاس لوہے کی اور لکڑی کی اور اس طرح کی بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہوتی تھیں، یا جن لکڑی کے ٹکڑوں پر میں خود رنگ کر کے ان کے پہیے اور چیزیں بناتا تھا اور کلر کرتا تھا پینسل سے۔ تو وہ گاڑیاں میں نے ایک ٹوکری میں رکھی ہوتی تھیں اور ان کو میں بڑا سنبھال کے رکھتا تھا۔ جب اسکول سے واپس آتا تھا تو میری ایک مرغوب کھیل تھا، میں اکیلا بیٹھ کے وہ کھیلتا تھا، گاڑیاں لائن میں کھڑی کرتا تھا، پھر ان کو یہ جی ملتان جا رہی ہیں، یہ کراچی جا رہی ہیں، یہ پشاور جا رہی ہیں، اس طرح کر کے لائنوں میں کھڑی کرتا تھا، پھر ان کو تھوڑا تھوڑا آگے بڑھاتا تھا۔ تو اس طرح کر کے ایک چھوٹا سا کھیل میرا تھا جو میں اکیلا کھیلتا تھا۔ وہ باتیں آج مجھے یاد آتی ہیں۔ جب میں ٹرانسپورٹ کمپنی بنانے لگا تو مجھے یاد آیا کہ یار یہ میں اتنا چھوٹا تھا تب بھی یہ کھیلتا تھا، آج بھی میرا کھیل نہیں بدلا، آج بھی میں وہی کھیل رہا ہوں۔ تو اس طرح سے ایک یادداشت ہے پرانی۔ اس کے بعد میں درمیان میں جاپان گیا تھا، وہاں پہ مجھے ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو میں دیکھتا تھا کہ بڑے صاف اینڈ ساؤنڈ قسم کا نا بڑا پیسفلی کام کر رہے ہوتے تھے۔ تو میں کہتا تھا کہ ان کو دیکھوں، میں ان کے جو ٹرمینل تھے ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا، یا ان کے اندر جا کے بیٹھ جانا، پتہ کرنا کیسے کام کر رہے ہیں۔ تو وہ ایک میں نہیں جانتا تھا کہ میں کاروبار ایسا کروں گا، لیکن میں سمجھنا اور دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کر کیسے رہے ہیں یہ۔ تو وہ بڑا اچھا طریقہ ان کا ہوتا تھا، لائک کا ایئرپورٹ سٹائل، چھوٹا سا ایک ٹرمینل ہے، لیکن وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں، باہر اپنی گاڑیاں وغیرہ پارک کر رہے ہیں اور موٹر سائیکل پارک کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اندر آ کے ٹکٹ لیتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا لگیج وغیرہ وہ گاڑی کے پاس جب لے کے جاتے ہیں تو وہ ڈرائیور ان کو ٹوکن دیتا ہے، اور پھر ڈرائیور ان کو لے کے دروازے بند کر کے چلا جاتا ہے گاڑی لے کے۔ تو ایک بڑا سموتھ سا سسٹم۔ یہاں تو ٹرمینلز پہ بہت رش ہوتا ہے، وہاں پہ یہ رش نہیں دیکھا میں نے، بہت مائنر سا ہوتا تھا، تھوڑے سے 50-100 لوگ ہوئے اور اس کے درمیان ہی یہ سسٹم چل جاتا تھا۔ تو ان کو دیکھ کے تو پھر ایک انسپائر ہوتا تھا کہ یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا پرامن کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں یہاں آیا تو یہاں پہ ایک مجھے میرے محلے دار غریب آدمی تھا، وہ ملا تھا۔ تو میں اکثر یہ دوست پوچھتے ہیں تو بتاتا ہوں انہیں بھی۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ، میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میں وین چلا رہا تھا اور مالک نے بیچ دیے، اور اب میں بالکل فارغ ہوں، تو آپ تو باہر سے آئے ہیں، آپ مجھے کچھ وین لے دو تو میں آپ کو بھی۔ اس دور میں یہ بات ہے 90 کی بات ہے یہ۔ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا مجھے گاڑی لے دو۔ میں نے کہا، اس نے بتایا میں اتنے آپ کو کما کے دے سکوں گا، 1000-1500 روزانہ دوں گا۔ تو میں نے سوچا کہ اچھا پوچھتے ہیں اس سے۔ میں نے کہا یار کیا کرو گے؟ اس نے کہا جی میں اگر بناؤں گا
ऐसी बस गाड़ी बनाऊंगा तो इतने की बनेगी, इतनी लाऊंगा, लेके देंगे तो इतने की होगी, ये मॉडल फलां कंडीशन, ये वो। उसने मुझे ऐसी बातें बताई तो मुझे ज़रा लगा कि ये शोरूम के काम को समझते हैं। मैंने उसे कहा यार तुझे शोरूम बनाना चाहिए। तो उसने मुझे कहा कि जी बिल्कुल, आप अगर मुझे शोरूम बना दो तो मैं बड़ा अच्छा काम कर सकता हूँ। मैंने 2 साल जॉब की है शोरूम पे, मुझे समझ है इस काम की। मैंने कहा ठीक है, वेल डन। मैंने उसको एक शोरूम बना के दिया और वेरी फर्स्ट डे बड़ा हमें अच्छा प्रॉफिट मिला। उसके बाद हमें एक शौक़ पैदा हो गया, हम करते रहे और इस काम में फिर ट्रांसपोर्ट के लोगों से हेलो हाय होती रही, मुलाकातें होती रही। टर्मिनल्स पे जाते थे, वहाँ अड्डों वालों से मुलाकातें होती थीं, ट्रांसपोर्टरों से मुलाकातें। इस तरह करते कराते फिर जब गाड़ियाँ हमारे पास ज़्यादा होना शुरू हो गई तो उन गाड़ियों को भी हम उन टर्मिनल्स पे चला देते थे। जहाँ ख़रीदी वहीं पे चला दी और फिर वो चलते चलते फिर बिक जाती थी। तो एक खेल सा चल रहा था। तो वहाँ से मुझे समझ आई कि मुझे अपना ट्रांसपोर्ट टर्मिनल बनाना चाहिए, ये ज़्यादा फिजिबल है और ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। फिर मेरा शौक़ भी था। फिर ये हमारे इजदाद की जगह पड़ी थी यहाँ पे 23 कनाल। तो इसमें से जब उन्होंने आपस में बांटी तो कुछ एरिया हमारे हिस्से में आया, कुछ दूसरे कज़नों और रिश्तेदारों के हिस्से में। तो इस जगह पर मैंने सोचा कि हम शुरू करते हैं। और यहाँ पे गहरा था और यहाँ पे 8 फुट गहरी जगह थी और यहाँ पे खेती बाड़ी होती थी जिसमें से वो कोई सब्जियाँ वगैरह हमारे घरों में आती थी। लेकिन हुआ क्या कि मैंने इस पर मिट्टी डलवा के इसको ऊंचा किया और इसको सेट करवा के और 2-4 कमरे डाल के और वाशरूम वगैरह और चीज़ें करके तो हमने टर्मिनल की शेप दी और लाइसेंस लेने के लिए भाग दौड़ करते रहे। तो फिर एक टाइम आया कि लाइसेंस मिल गया और फिर हमने वो जो एक हमें फ़ायदा थे ये था कि शोरूम की वजह से जो गाड़ियाँ हमारे पास थीं वो गाड़ियाँ कंपनी के नाम करवाईं और कुछ गाड़ियाँ बाहर से लीं, दोस्तों से मांगी और वो नाम करवा के तो एक जो हद होती है कंपनी की वो पूरी की पेपर्स में। और उसके बाद ये कंपनी इस्टेब्लिश होते होते आज ये आपके सामने एक ब्रांड की शेप में आ चुका है। लाहौर में कहीं भी हो, इधर बहुत सारे बस टर्मिनल्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, कहीं भी हो लेकिन कहलाया जाता है कि न्याजी अड्डे जा रहे हैं। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे टीचर थे रियाजी के, वो हमें जब बिज़नेस की बातें पढ़ाते थे तो वो हमें कहते होते थे कि भाई गोरा जो है वो अगर 100 रुपए का काम करता है तो वो 75 रुपए लगाता है एडवर्टाइज पर। अपनी सोर्स के 75% वो एडवर्टाइज पर लगाते हैं और 25% वो अपने कारोबार को करते हैं। तो वो मेरे जहन में छोटे होते से चलता था कि जितना ज़्यादा हम बात फैलाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी बात पहुंचेगी दुनिया तक। तो उस वक्त जो शुरू का टाइम था, बैनर्स लगाने शहरों में, जगह जगह अपना एडवर्टाइज़ करनी, गाड़ियों पर स्टिकर्स लगाने, आहिस्ता आहिस्ता एडवर्टाइज़ होती गई, लोगों के दिलों में ये छा गया। और अब बंद रोड पे किसी ने भी आना है, आने के 5-7 अड्डे हैं यहाँ पे, तो सब आने वाला बंदा ये कहता है न्याजी अड्डे जाना है। तो ये एक प्रायोरिटी हमें मिलती है। आज़म खान न्याजी साहब अगर ट्रांसपोर्टर ना होते तो आज के दौर में क्या कर रहे होते? खिदमत खल्क ही कर रहा होता तब भी, क्योंकि मेरे अंदर एक जो रूह है वो दूसरों से प्यार करने वाली है। मैं दूसरों के दुख दर्द को देखता हूँ, समझता हूँ, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश में लगा रहता हूँ। कहीं कहीं मैं फेल भी हो जाता हूँ लेकिन मोस्टली कोशिश करता हूँ और मेरी कोशिश कामयाब तब होती है जब मैं ज़ोर से लग जाता हूँ उस काम पे और कामयाबी मिल जाती है। आपसे मिलने वालों की लाइन लगी रहती है, ये एक पंचायत लगी होती है। ये कौन लोग हैं इतनी बड़ी तादाद में जो आपको मिलने आते हैं? यार ये जो आज आप आए तो कुछ ज़्यादा लोग बैठे थे, इनमें से कुछ सरगोदा से आए थे, कुछ ये हमारे शहर बसीरपुर वहाँ से आए थे और कुछ इधर साहिवाल के लोग थे, कुछ चिश्तियाँ की साइड से आए हैं वो लोग थे और कुछ लाहौर के लोग हैं। इनके अपने कोई छोटे छोटे मसले होते हैं। तो लाहौर में होते हुए कोई भी बाहर से आने वाला मुझे अपना काम कहता है तो मैं जहाँ तक हत्तुल वसा कोशिश होती है मैं उनका काम कर देता हूँ, या मुझे उठ के जाना भी पड़े तो मैं उनके साथ चला भी जाता हूँ। और हमारे अफसरान बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं।
उन लोगों की मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं जब कहीं उनके साथ बात करता हूँ, फ़ोन करता हूँ, तो मुझे वो मेरा काम करते हैं। और ये मेरा काम क्या होता है, लोगों के काम हो जाते हैं, तो वो हमें दुआ दे देते हैं, हम उन्हें दुआ दे देते हैं। बस ऐसे ही है, दरवेश का काम यही होता है। दरवेशी कर रहे हैं। हम मलंग लोग हैं जी। आपके कज़न, आपके भाई सोशल मीडिया पर इन हैं। लोग कहते हैं कि आज़म खान नियाज़ी साहब सोशल मीडिया पर क्यों नहीं आते, अपने बिजनेस के हवाले से वीडियोस क्यों नहीं बनाते? यार मुझे और बहुत सारे काम हैं, ये ज़रा बच्चों के काम होते हैं। मैं, वो भी हमारा बच्चा है, बेटा है, तो वो ये काम करता है तो अच्छी बात है, करता रहे, लेकिन मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं इस तरह के काम करूं। ये बच्चों का काम है। बजाज खान नियाज़ी साहब के साथ मेरे आप, मैनेजर्स ये काम करते हैं। बजाज खान नियाज़ी साहब के साथ मुकाबला है, मोहब्बत है, इख्तलाफ है, या उनके सर पर दस्ते शफकत है? देखिए मेरा भाई है, हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर दिए। जहाँ कहीं उसने गलती की है, मैंने उसको दरगुजर की है और उसकी हेल्प की है, उस पर आंच नहीं आने दी। कभी भी कोई उसके साथ प्रॉब्लम हुई है तो मैं उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ। देखो मैं इस ख़ानदान में पैदा हुआ, वो भी इस ख़ानदान का हिस्सा है। मुझे अपने लोगों का ख्याल करना है, ये मेरे ऊपर फ़र्ज़ है। जिस तरह ये लाहौर के लोग हैं, इन पर मेरा फ़र्ज़ है। जिस तरह पाकिस्तान के, मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, इन सब पर मेरे ऊपर फ़र्ज़ हैं जो मैंने अपने अदा करने हैं। मैं हमेशा इनके लिए फलाह के काम करूँगा, अच्छा करूँगा, हमेशा बहुत आगे जाऊँगा। आज भी मुलाकात होती है, बात होती है? हाँ, मुलाकात हो ना हो, दुआ हमारी उसके साथ है। मुलाकात नहीं होती? नहीं, मुलाकात नहीं होती। साथ ही रहते हैं सर? हाँ नहीं, वो अलहदा घर में रहते हैं, मैं अलहदा घर में रहता हूँ। लेकिन जब छोटा भाई जो है तो फिर भाइयों को भाई हमेशा साथ खड़े, मोहब्बत भाइयों वाली मिलेगी इंशाल्लाह। हमेशा साथ रहेंगे, मोहब्बत करेंगे जी, क्यों नहीं करेंगे। ये जी बड़ा ज़बरदस्त एक पैगाम है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि शायद कोई इख्तलाफ है, शायद कोई लड़ाई है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, वो मेरे छोटे भाई हैं, हमेशा दस्ते शफ़क़त उनके साथ रहेगा। तो एक बड़ी अच्छी बात है, एक बड़ी पॉजिटिव बात है जो कि आज़म खान नियाज़ी साहब की तरफ से आई है। फ़िलहाल हमें इजाज़त दें। एक बड़ी मोहब्बत भरी, एक बड़ी मोटिवेशनल, एक कामयाबी की कहानी थी इनकी जो हमने आप तक पहुँचाई। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।